Welcome students in today's class. Today's class will cover the topic reactions on alkene. Specifically in today's session we will cover the addition reaction on alkene, which is in the syllabus of major chemistry honors students, minor chemistry course and multidisciplinary chemistry course. So this is one of the very important topic from examination point of view and from your competition point of view. तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑन एल्कीन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर एल्कीन्स? एज यू ऑल ऑलरेडी नो, आप लोग पहले से जानते हैं, फॉर एल्कीन्स वी हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यू सी here one is sigma bond and the other bond is pi bond. The carbon is sp2 hybridized, structure is planar. What kind of reactivity can be shown by this alkene molecule? As you know that this is unsaturated. Unsaturated means it has some space to add some other molecule. This is not saturated. So whenever we have unsaturated reactant, the reactions shown by that reactants are addition reaction. See, addition means something is going to add on this molecule. So how the reagent or other compound will add? Suppose we will start with the addition of halogen acid or hydrochloric acid HCl. How? See, this is halogen acid. How this HCl molecule is going to add on this alkene? This reaction comes under the class of electrophilic addition reactions on alkenes. So see how this reaction will occur. This HCl is a polar molecule. Chlorine is electronegative atom, so bond will polarize towards chlorine, and this will generate the H plus and Cl minus ion. Now see, we have two species to react. दो species है यहाँ पर. One is electrophile, okay, and the other is nucleophile. Which is going to add first? Remember, both will not add simultaneously. दोनों एक साथ नहीं ऐड होंगी, एक पहले ऐड होगी, एक बाद में ऐड होगी. Which is going to add first? The first is electrophile. That's why this reaction is known as electrophilic addition reaction. If nucleophile at first, then the reaction will be nucleophilic addition reaction. Okay. So let's see how this reaction will proceed. I will clean this. Now we have alkene molecule. Suppose CH3 substitution is here, this hydrogen, hydrogen and hydrogen. This is 1, 2, 3, 1 propene. Now when HCl will add, addition of HCl. How HCl is going to add? It will break into H plus and Cl minus. ये H plus और Cl minus में ब्रेक होगा. एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा. यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप लोगों को पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है. जहाँ कहीं भी इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा वो दौड़ के इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लेगा. अब यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा. इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. दो तरह की सिचुएशंस पॉसिबल हैं यहाँ पर. देखिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है.
अब ये प्रोटॉन या तो इस कार्बन पे लग जाए या तो इस कार्बन पे लग जाए, ठीक। तो दोनों पे लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो हमको क्लियर हो जाएगा कि किस पे लगेगा। देखिए, अगर इस कार्बन पे लगता है तो ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा, अगर इस कार्बन पे लगता है तो ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब चॉइस आपकी है स्टूडेंट्स, एक कार्बोकैटायन ये है, एक कार्बोकैटायन ये है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट सेकेंडरी कार्बोकैटायन से बने। नाउ अब हम लोग यहाँ पे समझ गए कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल तो देखिए पहले ही लग गया है। अब न्यूक्लियोफाइल Cl- है, एक कार्बन जो बचा ये कार्बोकैटायन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए CCH और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें देखिए जो निगेटिव पार्ट है हैलोजन एसिड का, अगर हैलोजन एसिड ऐड हो रहा है, इसका निगेटिव पार्ट Cl- है, वो उस कार्बन पे अटैच हुआ जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। सी हियर वन मेथाइल ग्रुप इज अटैच, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ही है तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, उस पे निगेटिव पार्ट हैलोजन एसिड का आगे लगता है। इसको पहली बार बताने वाले मार्कोनिकॉव थे, मार्कोनिकॉव, और ये रूल मार्कोनिकॉव रूल के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन सीखा, हैलोजन एसिड कैसे ऐड होते हैं एल्कीन पे, वो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मार्कोनिकॉव रूल? दिस इज द reason behind the Markovnikov rule, because the stability of secondary carbocation. Okay, so negative part of halogen acid will attach on the more substituted carbon. अब next वीडियो में हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल की बात करेंगे कि कब हैलोजन एसिड मार्कोनिकॉव रूल के अगेंस्ट ऐड होते हैं, उसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।